very good evening, everyone. A very warm welcome in today's webinar on MDP, Multidisciplinary Practices. Myself, Prachi Negi from CA Sansar. Recently, ICI had notified new Form 18, and to discuss on that, we have our guest member, CA Vivek Khurana ji, and today's webinar speaker. Although he doesn't need any introduction, but let me just read out his brief profile. CA Vivek Khurana ji is a practicing chartered accountant and also an insolvency professional, and are of work in IBC, corporate law, banking, and finance. CA Vivek Khurana ji was elected as Regional Council Member NIRC of ICI in 2015 for the year 2016 to 19, with highest number of votes out of 58 candidates in the history of NIRC, and was elected as Vice Chairman of NIRC of ICAI 2017 to 18. He is also founder of a popular social website, casansar.com, exclusively for CA, CS, CMA professionals, having a strength of more than 2.5 lakh registered members on the site. Since last 10 years, the open platform of casansar.com has tried to provide lots of facilities to professionals. He has given various lectures nationally and internationally on the topics such as IBC, ICI, MOU with CPA Australia, Canada, Ireland, etc. Blockchain, Code of Ethics, MSME, and opportunities in India. Now I request CA Vivek Khurana ji to please start his deliberation. Thank you very much, Prachi ji, for such a nice introduction. And my sincere thanks to Team CA Sansar for giving me the opportunity to speak on this very important topic. I've seen many respected members, our elder brother, our mentor, CA Sunil Maggu ji, Basant Mehta ji, Pradeep ji, very members are there. So thank you very much for being with us. And today we'll discuss on this very, very important topic, MDP, Multidisciplinary Partnership. Disciplinary में वैसे ही कहते हैं ना, disciplinary का नाम सुन के डर लगता है, but I think it's the first time we are so much excited to know about this disciplinary, because disciplinary proceeding, disciplinary mechanism, but first time it's the multidisciplinary partnership. So let me show you my PPT. Yes, it's visible. Yes, sir, you are visible, and the PPT as well. Just a minute. Okay, so partnership, we all aware what's the partnership. I will not go on that. Ki partnership kya hai? It's in like a organization where partners work together and then share profits and own a part of the firms. And then right now, till now, till up to 8 July, we were working like a single disciplinary partnership. Single disciplinary partnership means we have the single regulator. Means if we are chartered accountants, then we have the ICI. If we have the cost accountant, then CM, ICMAI, and if the company secretary. So it was the single disciplinary partnership. But now the new concept, but it concept was very old. ICI tried from last 8 to 10 years. Ki start ho jaye multidisciplinary partnership means where the members of different disciplinary, they work together. And this is the dream of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. He again remind us in 2017 at the platform of ICI, he said, there should be some partnership firms which compete to the Big Four. Means at least 10 firms should be there which compete. It's the global competition should be there. Abhi kya ho raha hai? Abhi 70 to 75% firms, the CA firms, it's work like a partnership, proprietorship firms. So this is the new concept, but it's in our schedules. तो एक बार हम इसका background देख लेते हैं quickly. So if you go
to the Chartered Accountant Act in first schedule part 1, there are clause 2, 3, 4 and 5. Because ICAI already allowed कि आप किसी के साथ भी आप शेयर, कमीशन, ब्रोकरेज, फीस और प्रॉफिट वो नहीं शेयर कर सकते unless he is your partner or a member of any other professional body on which such other person having such qualification as may be prescribed. तो आईसीआई ने क्लोज 2 में, क्लोज 3 में, क्लोज 4 में जो इनके फर्स्ट शेड्यूल में ऑलरेडी दे हैव अलाउड कि आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हो, पे कर सकते हो एंड इवन यू कैन एक्सेप्ट क्लोज 3 में यू कैन आल्सो एक्सेप्ट इट। जो अभी तक का जो सीन है ये हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में है एंड इवन क्लोज 4 में आई एम गोइंग क्विकली क्योंकि वी ऑल नोज अबाउट दिस वन फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1, वी ऑल अवेयर अबाउट दैट क्लोज 4 कि आप पार्टनरशिप भी कर सकते हो अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट यू कांट डू एंड दे हैव आल्सो प्रिस्क्राइब्ड सम इंस्टीट्यूशन जो रेगुलेशन 53A और 53B में है क्वालिफिकेशन एंड अदर इंस्टीट्यूशन, उसके अलावा आप किसी और के साथ पार्टनरशिप भी नहीं कर सकते अदरवाइज यू विल बी गिल्टी फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। इट्स इन द क्लोज 4 एंड देन क्लोज 5 you can't secure any professional business other than who is your partner or member of these institute। तो वो कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो आईसीआई ने ऑलरेडी अलाउड कर रखे हैं? इट्स इनटू द रेगुलेशन 53A एंड द 53B दैट वी विल डिस्कस। ये अभी तक हमारी बैकग्राउंड है जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। नाउ 53A जो रेगुलेशन है द बॉडीज फॉर 235 which I already told you and membership of these professional institute it's mentioned in the regulation 53B। इसके ऊपर पूरा डिटेल हम डिस्कशन करेंगे। देन मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप जो न्यू कॉन्सेप्ट आया एमडीपी का, दिस इज जस्ट लाइक मल्टीपल प्रोफेशनल सर्विसेज अंडर वन अम्ब्रेला। लाइक पहले हम क्या होता था, वी कांट डू द कोस्ट ऑडिटर, द कोस्ट अकाउंटिंग, सम अदर सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, उसके लिए हमें सीएस के साथ या तो आउटसोर्स करना पड़ता था। बट नाउ अंडर वन रूफ, अंडर वन नेम we can provide all these services. We can provide maintenance of post records, accounting, auditing, assurance, secretarial, legal, valuation, management, many other services under one umbrella। तो उसके लिए they said MDB कौन फॉर्म करेगा? MDB can be formed by a member of the institute by entering into the partnership with a person who shall be a member of the other institution जो 53 में mentioned है, provided, the word is provided, the law governing such other professional permit the formation of multidisciplinary partnership firms। तो हमें देखना है कि जिसके साथ आईसीआई ने हमें अलाउ किया है कि वी कैन बिकम द पार्टनर या इनको हम पार्टनर मिला सकते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। ऑन 8th July दिस नोटिफिकेशन केम वेयर इट वाज पब्लिश्ड in the gazette notification। उसमें आपका न्यू फॉर्म 18 was there। नितिन जी प्लीज ये लाइन मत लगाइए प्लीज। प्लीज ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। सो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज आजकल ICAI का भी झगड़ा है, इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आल्सो सेइंग कि वी आर आल्सो द ICAI। तो लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। ICAI मींस इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। मींस ICAI is the first pioneer institute which have started this MDP and allowed by the MCA, Ministry of Corporate Affairs ने भी allowed कर दिया। And before going to start, I just want to say a few things। This is just a step, many other clarification has to come, बहुत से doubts हैं and also many other amendments should be there तभी जाके, क्योंकि ये it's a baby step MDP का, it takes time। I told you it's the dream of the Modi ji, they want we should have some global Indian firms, so it's the first step and the ICAI just started it। अभी last week ICM Institute of Cost Accountant of India also given the draft guidelines, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट जो भी MCA ने अलाउ कर दिया, गजट नोटिफिकेशन भी आ गया विद इफेक्ट फ्रॉम 8 जुलाई। तो उसमें क्या है, दिस वाज द नोटिफिकेशन, जिसमें न्यू फॉर्म्स आया है। उसके बाद ICAI ने कुछ FAQs इशू किए हैं, गाइडलाइंस इशू किए हैं, वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सो
ये section 2 of the Chartered Accountant Act, section 2 subsection 2 is talks about the when the member of ICI shall be deemed to in practice, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे. Section regulation 53B, I told you regulation 53A and regulation 53B. Regulation 53B talks about the membership of professional bodies जिसके साथ हम पार्टनरशिप कर सकते हैं, and regulation 190 जो एक हमारे फॉर्म ऑफिसेज ओपन करने हैं, कौन इंचार्ज होगा, everything we will discuss. So first रेगुलेशन 53B, हम किसको अपनी फर्म में पार्टनरशिप बना सकते हैं. रिमेंबर वन थिंग, अभी इट्स ओनली फ्रॉम द आईसीए साइड. अभी सिर्फ हम उनको अपनी फर्म में बना सकते हैं. अभी दे हैव नोट CS, CMA और एडवोकेट, अभी उन्होंने उनके वहां अलाउड है, प्रोविजंस है, बट नोटिफिकेशन इज नॉट देयर. सो ओनली यू कैन आस्क देम टू एंटर एज ए पार्टनर इन योर फर्म. सो किसके साथ कर सकते हैं? First, company secretary, member of the Institute of Chartered Accountant of India. Here the word is member. कि आप company secretary कौन होगा? कोई like a chartered accountant who is the member of ICI. Member means कौन? जिसका name registered में लिखा हुआ है. So it doesn't mean कि किसी ने CS exam clear कर लिया या CMA exam clear कर लिया आप उसको partner बना लोगे. No. As per regulation 53B, only member of ICSI. Now we will check also कि उनके गवर्निंग एक्ट में वेदर इट्स अलाउड, वहां पे है अलाउड या नहीं, दैट वी विल सी. फर्स्ट कंपनी सेक्रेटरी, सेकंड कोस्ट अकाउंटेंट, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश्ड अंडर कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट 1959. थर्ड इज एडवोकेट. एडवोकेट कौन? member of the Bar Council of India, established under Advocate Act 1961. Then engineer, member of the Institute of Engineer or engineers from a university established by law or an institution recognized by law. Then fifth is architect, member of the Institute of Architect established under the Architect Act 1972. Then fifth is actuary. तो इन सब के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो. एक क्वेरीज पे वॉइस क्रैकिंग, वॉइस क्रैक हो रही है? No, sir. क्वेश्चंस मैं थोड़ी देर में ले लूंगा, एक मिनट थोड़ा सा कंप्लीट कर ले. लेट मी कंप्लीट. आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे. लेट मी कंप्लीट थोड़ा सा, देन ऑल डाउट्स विल बी क्लियर. विल टेक द क्वेश्चन लेटर ऑन. सो दीज आर द पर्सन जिसके साथ हम पार्टनरशिप कर सकते हैं. मींस यू कैन ऐड इन योर ओन फर्म और यू कैन फॉर्म ए न्यू फर्म, कि आप नई फर्म भी बना सकते हैं. सो दीज 6 इंस्टीट्यूट, कंपनी सेक्रेटरी, कोस्ट अकाउंटेंट, एडवोकेट, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट. आई थिंक इंटरनेट इशू है, मैं 1 मिनट में चेंज करता हूँ उसको. जस्ट a minute. Now is it okay? प्राची जी is okay? अश्विनी जी, Yes. now is okay? अब क्लियर है? Yes, sir. Now you're audible. Okay. So these are, I'm sorry. So उसमें थोड़ा इशू आ गया. So these are the institute, जो member of these institute जिनके साथ हम पार्टनरशिप कर सकते हैं. Now we will see one by one कि कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी उनके गवर्निंग लॉ में व्हाट्स द प्रोविजंस देयर. तो कंपनी सेक्रेटरी, हु इज द कंपनी सेक्रेटरी मींस जिसका नेम, हु इज द मेंबर ऑफ ICI, नेम हैज बीन रिटन. रिमेंबर वन थिंग, इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और द कंपनी सेक्रेटरी, जो भी इनके प्रोविजन है इट्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल. सो सेम सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980, जो हमारे यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 में है, who will be the company secretary deemed in practice. Means deemed in practice, who will do the partnership with the member of such other recognized profession as may be prescribed. उनके भी गवर्निंग एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है कि आप किन किन के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो. एंड आल्सो दे हैव आल्सो द क्लोज फॉर, जो हमारे में है कि इफ ए कंपनी सेक्रेटरी shall be deemed to guilty for the professional misconduct if he enter into the partnership with any other person unless it's prescribed in the act.
तो उनमें कौन कौन से एक इन्होंने रेगुलेशन में प्रिस्क्राइब किए हैं, उसमें इंस्टीट्यूट हेलो यस वॉइस इज देयर Yes, sir. सॉरी कुछ आई थिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी है आई एम सॉरी फॉर दैट हाँ तो आई वाज टॉकिंग अबाउट द कंपनी सेक्रेटरी जो सेम प्रोविजन जो आईसीआई चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में है सेम प्रोविजन इज इनटू द कंपनी सेक्रेटरी एंड द पोस्ट अकाउंटेंट सो सेम प्रोविजन फॉर द कंपनी सेक्रेटरी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में एंड देन क्लोज जैसे यहाँ हमारे पास फर्स्ट शेड्यूल है सेम इज इनटू द कंपनी सेक्रेटरी में शेड्यूल है क्लोज 4 में कि आप किसी और के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते unless it's allowed same regulation जो हमारी 53 रेगुलेशन है सेम रेगुलेशन 168B में वहां पे है आपके कंपनी सेक्रेटरी रेगुलेशन एक्ट में दे हैव सो कंपनी सेक्रेटरीज के एक्ट रेगुलेशन दे परमिट कि यू कैन बिकम द पार्टनर विद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सो MDPCA जो MDP हम बनाएंगे सो इट्स परमिट टू डू द पार्टनरशिप विद द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया कि आप उनके मेंबर्स जो भी है कंपनी सेक्रेटरी उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो देन पार्टनरशिप विद द कोस्ट अकाउंटेंट में भी सेम प्रोविजंस हैं सेक्शन 2 डिफाइन द कोस्ट अकाउंटेंट कौन है who are the member of the institute then section 2 subsection 2 it defines deemed to be practice the cost accountant kab deemed to be in practice and when they are also doing practice with some others then they have the clause 4 same clause same wording identical आपके identical है आपके chartered accountant act के साथ कि you can't do the practice with some others and but which are defined in the act और इसमें they have also regulation 111C they allowed कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर ऑफ द आईसीआई के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो सो हियर आल्सो इट्स मेंशन इन देयर एक्ट कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो सो MDPCA in practice shall be permitted to enter into partnership with the member of the Institute of Cost Accountant of India. Now, this is important. Partnership with advocate because CA, CS, CMA, all the professional institutes are there. You can say that the sister concerns are there. और काफी टाइम से it was saying कि आपस में partnership होनी चाहिए. Now ICI the pioneer institute जिन्होंने firstly allow किया है, but अभी reverse is not allowed. आप सिर्फ MDPCA के थ्रू ही मेंबर पार्टनर्स बना सकते हो. But yes, last week Cost Accountant, they have Institute of Cost Accountants of India, they have also issued the draft guidelines. तो वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं माइट भी थोड़े टाइम में CS भी अलाउ कर देंगे बट अभी तक स्टिल इट्स ओनली फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट साइड ICI साइड सो पार्टनरशिप विद एडवोकेट तो एडवोकेट का मीनिंग इट्स डिवाइड इनटू द एडवोकेट एक्ट 1961 एडवोकेट मींस एन एडवोकेट एंटर इन एनी रोल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट सो जो सेक्शन और रेगुलेशन 53B जिसमें बताया है कि आप किस किस के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो इट only says member of the bar council of India established under the advocate act कि आप सब एडवोकेट के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते ओनली मेंबर ऑफ द बार काउंसिल जो ICI ने रेगुलेशन इशू करी है रेगुलेशन 53B एंड देन इन देयर रूल 2 of chapter 3 of part 4 condition for right to practice of the bar council of India rules 1975 उसमें ये डिफाइंड है एन एडवोकेट शेल नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑफ एनी अदर अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग रेम्युनरेशन विद एनी अदर पर्सन और लीगल प्रैक्टिशनर हु इज नॉट एन एडवोकेट सो बार काउंसिल हैज क्लियरली मेंशन कि आप किसी और के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते सो ICI ने अलाउ कर दिया है बट बार काउंसिल अलाउ नहीं कर रही सो इट मींस आप एडवोकेट को पार्टनर नहीं बना सकते सो Bar Council of India Rules 1975 are amended. MDPCA in practice shall not enter into the partnership with advocate who is the member of the Bar Council of India. So even advocates are also demanding कि Bar Council their rules को उसको amend करे and they can also become the partner या reverse direction में CA उनके साथ partner बने. They are trying
बट टिल नाउ यू कांट, आप उनके साथ ना तो बन सकते हैं, रिवर्स साइड तो भी अलाउड ही नहीं। देन पार्टनरशिप विद इंजीनियर्स। इंजीनियर्स कौन है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, या तो मेंबर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, या जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ द इंजीनियर्स या अंडर एस्टेब्लिश अंडर लॉ वहां से पास आउट किया है, तो उनके साथ भी आप मेंबरशिप कर सकते हो। इट्स अलाउड इन देयर लॉ, उनके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो। एंड देन आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट की डेफिनेशन, इट्स डिफाइंड। कौन है आर्किटेक्ट? इट्स डिफाइंड इनटू द आर्किटेक्ट एक्ट 1972 एंड उसके क्लोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाईलॉज ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स। उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि कैसे मेंबर्स बनेंगे, ऑनरी फेलो, फेलो मेंबर, एसोसिएट मेंबर, लाइसेंस्ड रिटायर्ड फेलो। तो दे हैव आल्सो अलाउड, उनके भी बाईलॉज में है कि यू कैन बिकम द पार्टनर्स विद अदर्स। सो आर्किटेक्ट in MDPCA, they can also become the partnership, but it can be member of the Institute of the Architects. Then actuary. Actuary में कौन कौन आता है? Actuary means a person, जो definition है section 2 subsection 1 clause A में of the Architect Act, Actuaries Act 2006, means a person skilled in determining the present effect of future contingent events. तो एक्चुरीज की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक्चुरीज में दे हैव डिफाइंड कौन एक्चुरीज हो सकता है, किसके पास प्रैक्टिस है। सो मेन कंक्लूजन जो एक्चुरीज का है, एक्चुरीज के पास अगर इफ दे हैव सीओपी, वो आपके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता, बट इफ दे डोंट हैव द सीओपी, then they can become the partner with the chartered accountant MDPCS. So this is the summary जो भी हमने डिस्कस किया कि आप किस किस के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। कंपनी सेक्रेटरी, कोस्ट अकाउंटेंट, एडवोकेट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, एक्चुअरी। तो उसमें रिलेटेड जो उनका क्लोज दिए हुए हैं कि व्हाट्स डीम्ड टू बी प्रैक्टिस, व्हाट्स द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, कौन सा प्रोविजन अलाउ करता है, तो उसका कंक्लूजन क्या है कि हम अगर MDPCA मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप अगर बनाते हैं या अपनी फर्म उसको MDP में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें कंपनी सेक्रेटरी इज परमिटेड, cost accountant also permitted, then advocate is not permitted, engineer is permitted, architect is permitted, actuary is permitted only if they don't have the COP. अगर उनके पास COP नहीं है तभी उसको आप पार्टनरशिप में अपने साथ ऐड कर सकते हो, अदरवाइज यू कांट डू इट। देन अनदर क्वेश्चन, मेंबर ऑफ अदर प्रोफेशनल बॉडीज, कि कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, MBA है, तो वेदर वी कैन ऐड देम इनटू द MDPCA। तो ICI इन देयर गाइडलाइन सेड नो, आप उनको ऐड नहीं कर सकते, ओनली दोस व्हिच आर मेंशन्ड इन द रेगुलेशन 53B। तो रेगुलेशन 53B में only these 6 institution, member of these 6 institution are allowed, but अभी आई थिंक दिस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड द वैल्यूअर्स, बिकॉज इनमें भी कौन है, मोस्टली CA, CS, CM है, दे कैन डू इट, बट कोई इंडिपेंडेंटली खाली IP का काम कर रहा है, CA नहीं है, मेंबरशिप नहीं है, तो भी आई डोंट थिंक सो अभी उनकी कोई जरूरत है, तो इनको अलाउड नहीं किया है। बट यस, दे कैन वर्क। अगर आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरी फर्म में CS है, CM है, कोई वैल्यूएशन का काम कर रहा है या कोई इसका IP का काम कर रहे हैं, then they can become the partner as a member of other institution, ICSI या ICMI, तो उसमें कोई इशू नहीं है। then forms of constitution, कि आप कैसे कॉन्स्टिट्यूट करना है, कि आप उसका आपने MDP बनानी है, MDPCA इन प्रैक्टिस, उसको या तो आप पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप है, अगर इफ यू हैव ऑलरेडी पार्टनरशिप तो भी वो आपकी पार्टनरशिप भी रहेगी एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, और उसको आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP में भी कन्वर्ट कर सकते हो। LLP में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, या तो पार्टनरशिप फर्म या फिर LLP। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल हम CA फर्म कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमें लिखना होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज पर अंडर सेक्शन 7 ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट। सो MDP के लिए हमें लिखना पड़ेगा MDP ऑफ द CAs इन प्रैक्टिस, multidisciplinary partnership firm of chartered accountant in practice. So
दिस MDP विल बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनसे अलग उनका FRN नंबर होगा, अलग से FRN, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, अलग से उनका FRN नंबर जो फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर है। MDP केस में एक न्यू FRN नंबर मिलेगा, दैट वुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म। देन फॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर MDP CS, जो हमारे CA CS CMA आर्किटेक्ट एक्चुअली, क्योंकि एडवोकेट तो भी आप ऐड नहीं कर सकते, तो वेदर दे कैन फॉर्म ए कंपनी। तो सेक्शन 25 ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट से नो, यू कांट फॉर्म द कंपनी, आप कंपनी को फॉर्म नहीं कर सकते। आपको या तो पार्टनरशिप फर्म में या LLP में, कंपनी ऑडिटर नहीं हो सकती, और आई थिंक वो कंपनी सेक्रेटरी भी नहीं हो सकते, कॉस्ट अकाउंटेंट भी नहीं हो सकते। तो यू कांट फॉर्म, सेम सिमिलर सेक्शन वहां पे भी है कॉस्ट अकाउंटेंट में एंड द कंपनी सेक्रेटरी में, कि आप उसको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका उसी में कन्वर्ट कर सकते हो। देन विच काइंड ऑफ सर्विसेज, जो MDP CAs इन प्रैक्टिस हम बनाएंगे तो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सेम सर्विसेज जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं इन द सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 रेगुलेशन 190A में जो उनको अलाउड है, वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हैं, प्लस सेम अदर जो कंपनी सेक्रेटरी में कर सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट में कर सकते हैं, एक्चुअरी में कर सकते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, इफ आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं किसी कंपनी सेक्रेटरी को अपने साथ ऐड कर रहा हूं, तो इट डजंट मीन कि मेरे को राइट मिल गया, नो। रिमेंबर द सेम प्रोविजन। अगर एक पर्सन, कोई भी एक, प्रदीप जी सामने बैठे हैं, तो अगर वो CA है, CS है, CM है, तो सारी प्रैक्टिस तो नहीं कर सकता ना। आइदर ही कैन डू द चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्क या कंपनी सेक्रेटरी और द कॉस्ट अकाउंटेंट, कोई भी एक काम कर सकते हैं। सो सेम थिंग हियर, कि अगर आप किसी को कंपनी सेक्रेटरी में पार्टनर बना रहे हो, तो इट डजंट मीन कि आप कंपनी सेक्रेटरियल वर्क स्टार्ट करना शुरू कर दोगे या दैट पर्सन विल स्टार्ट साइनिंग ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट, नो। वो यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज अंडर वन अम्ब्रेला, आप ब्रांडिंग कर रहे हो एक उसकी, दैट्स द पर्पस ऑफ दिस MDP। सो अभी इसको आगे देखते हैं। देन ऑडिट, एक जो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 140 सबसेक्शन 1, तो विच अलाउज कि वेदर ऑडिटर, कि हम एक फर्म बना रहे हैं, तो वेदर दैट फर्म कैन आल्सो बिकम द ऑडिटर और नॉट। सो दिस सेज a person shall be eligible for appointment as auditor of a company only if he is a chartered accountant। सेम क्लोज आपका कॉस्ट अकाउंटेंट में है कंपनीज एक्ट के लिए, उसमें एक सेक्शन है, और सेम उसके लिए सेक्रेटरी के लिए, कंपनी सेक्रेटरीज के लिए। बट उसमें ये क्या है, प्रोवाइडेड द फर्म वेयर ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर practicing in India are qualified for appointment as aforesaid may be appointed by the firm name of the auditor of company। ये हमें पता है कि हम अपनी किसी अंडर कंपनीज एक्ट 2013 कि आपने कोई ऑडिटर अपॉइंट करना है, आइदर क्योंकि आपको तो इंडिविजुअल नाम से अपॉइंट करना है, अगर फर्म के नाम से अपॉइंट करना है तो मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन की LLP के केस में दैट शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड सेक्शन 142 दिस इज फॉर LLP। तो LLP के केस में जो उन्होंने मेंशन करा है कि LLP अगर है उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो सेम क्लोज इज देयर कि आप MDP को भी अपॉइंट कर सकते हो, बट MDP के केस में मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर, अगर उन्होंने MDP CA है और ऑडिटर अपॉइंट करना है, तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड मेजॉरिटी कैसे चेक करनी है, मेजॉरिटी के केस में बोथ द कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड, नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड एग्रीगेट शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। कि अगर आपके 10 पार्टनर्स हैं एक फर्म में, तो 6 शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड 51% शुड बी द शेयर्स, कि मेजॉरिटी आपकी बोथ क्लोज, बोथ शुड बी एप्लीकेबल। अगर बोथ कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, देन आप उसे अपॉइंट नहीं कर सकते। दिस इज मेंशन इन सेक्शन 141। देन नाउ द सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लोज जी में ये मेंशन है कि क्या और उसकी नंबर ऑफ लिमिट्स कि कितने ऑडिट कर सकते हैं। इट डजंट मीन्स कि अगर मेरी फर्म में 10 पार्टनर्स हैं, 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट, 2 कॉस्ट अकाउंटेंट, 1 कंपनी सेक्रेटरी, 1 आर्किटेक्ट, तो इट डजंट मीन्स कि जो मेरी लिमिट है इट गोज मल्टीप्लाइड बाय 10, नो। सेम थिंग उसमें भी आपका सेम है एज नंबर ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट।
बिकॉज उसमें एक लिमिट्स है, कंपनी सेक्रेटरी चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने ऑडिट कर सकते हैं। तो एज पर दिस क्लोज ओनली 20 ऑडिट, 20 ऑडिट दे कैन डू। 20 ऑडिट्स में प्राइवेट कंपनीज जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड द 1% कंपनी, ये एक्सक्लूड करते हैं। बट जो आईसीआई की गाइडलाइंस है, आईसीआई की गाइडलाइंस में इट्स द 30 कंपनी विच इंक्लूड्स प्राइवेट एंड द पब्लिक बोथ, एंड मैक्सिमम 10 कंपनी शुड बी देयर जिनकी पेड अप कैपिटल 25 लाख से ऊपर। सो इट डजंट मीन्स कि आपको 30 अलाउ किया तो 30 into 10 300, नो। ये जो लिमिट है इट विल चेक एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्हीं के अकॉर्डिंगली है कि आपको उसका एडिशनल कोई बेनिफिट। और सेम थिंग, इसके ऊपर तो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि अभी रिवर्स पार्टनरशिप इज नॉट अलाउड, कि अगर आप कंपनी सेक्रेटरी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो उनकी लिमिट मल्टीप्लाई हो जाएगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। देन सेक्शन 144, जो आपके सेक्शन 144 के क्लोज है कि इफ यू आर अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ ए कंपनी यू कांट प्रोवाइड सर्टेन अदर सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप 144 में मेंशन है कि आप कौन सा काम कर सकते हो अगर आपको ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। देन इट कैन बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द ऑडिट कमेटी। उसके अलावा आप कोई काम नहीं कर सकते। उसमें कौन कौन सी सर्विसेज है, दीज आर द सर्विसेज जो आप नहीं दे सकते। इट्स आल्सो एप्लीकेबल ऑन द एमडीबी, accounting and bookkeeping services, internal audit, design and implementation of any financial information system, actuarial services, investment advisory services, investment banking services, rendering of outsourced financial services, management services, any other kind of services as may prescribed. This is mentioned in section 144 of the Companies Act 2013. Then what's about the share? कि अगर हम 5 पार्टनर मिल रहे हैं या 6 या 7, व्हाट्स अबाउट द शेयर? तो देयर आर नो स्पेसिफिक कंडीशंस आर देयर कि आईसीआई ने मेंशन किया कि सीए को इतनी है। नो, इट्स एज पर योर पार्टनरशिप डीड। आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि किसका कितना शेयर होगा। बट रिमेंबर दैट अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो, रिमेंबर दैट मेजोरिटी शुड बी एज पर देयर कॉन्जिक्यूटिव लॉ, कि अगर आप कंपनी सेक्रेटरी वाले कर रहे हैं तो उनके मेजोरिटी, चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहे हो तो देयर मेजोरिटी इन बोथ द टर्म्स, नंबर एंड द परसेंटेज। देन रिगार्डिंग द ब्रांच ऑफिस, कि अगर इफ आई एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप, मैंने किसी कंपनी सेक्रेटरी के साथ पार्टनरशिप की या पोस्ट अकाउंटेंट या एक्चुअली, तो ऑब्वियस है कि आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेज ओपन होंगे, तो आपको उसके लिए डिफरेंट सेपरेट इंचार्ज शो करना पड़ेगा and you have to intimate to the ICI. But इसमें ICI mentioned कि इंचार्ज should be the chartered accountant. But अभी I have just read cost accountant की जो guidelines है, they have said कि anybody can be the incharge, कि CA भी हो सकता है, CS भी हो सकता है, CMA भी हो सकता है। तो सेम थिंग आपको ICI को भी चेंज करनी पड़ेगी। इट्स नॉट लाइक दैट कि CA कुछ कहें, CS कुछ कहें, CMA कुछ कहें। नो, जो प्रोफेशनल बॉडी है दे विल वर्क टुगेदर, उनके आपस में जो अंडरस्टैंडिंग होगी एंड दे विल डू। सो जो ब्रांच इंचार्ज होगा आपका, यू हैव टू इंटीमेट, आपको इंटीमेट कोरस्पॉन्डिंग जो भी आपकी बॉडी है उसको आपको इंटीमेट करना पड़ेगा कि दिस इज द ब्रांच इंचार्ज। एंड देन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। अभी समबडी आस्क्ड मी, मैसेज भेजा था मेरे को कि अगर एक पार्टनर ने कोई सर प्लीज ये ना करिए, लाइन लग रही है। यस, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग ये नहीं है कि इफ आई हैव ए मेंबर पार्टनर, सीएस पार्टनर है तो आईसीआई विल स्टार्ट टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द सीएस। नो, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो उनके कोरस्पॉन्डिंग रेगुलेटर है सीए के लिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इफ ही वायलेट्स कोई भी प्रोविजन ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट तो आईसीआई विल टेक एक्शन। सेम थिंग विद द कोस्ट अकाउंटेंट। अगर कोई कोस्ट अकाउंटेंट, कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट 19 उसमें गलती लिखी हुई है 1949, तो उसमें अगर वो उसके कुछ प्रोविजंस के अगेंस्ट जाते हैं तो ICAI, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, दे विल टेक एक्शन। सेम विद द कंपनी सेक्रेटरी, आर्किटेक्ट। तो सेम कोरस्पॉन्डिंग, दैट्स इट्स कॉल्ड मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप, कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन जो आपके रेगुलेटर है दे विल वर्क टुगेदर। जो डिफरेंट मेंबर्स हैं रेगुलेशंस के, वो मिलके काम करेंगे। तो डिसिप्लिनरी के केसेस में दे विल डू। एंड देन रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है? रजिस्ट्रेशन के लिए यू हैव टू फर्स्ट, अगर आप न्यू फॉर्म कर रहे हो, इफ यू आर फॉर्मिंग ए न्यू एमडीपी,
नई एमडीपी फॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए सेम थिंग जो आप पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट में करते हो, नेम अप्रूवल चाहिए आपको, क्या नेम चाहिए। मींस अगर आप ये बना रहे हैं एमडीपी, मेन थिंग इज कि आपने इसको ग्लोबलाइज करना है। यू हैव टू compete नॉट ओनली लोकली बट विद ग्लोबल, उसका ब्रांड बिल्डिंग करनी है, यू हैव टू मेक द ब्रांड बिल्डिंग। सो नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेम, जैसे आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट में आपने पहले नेम अप्रूव करवाया था, चलो उस टाइम तो हो जाता था कि एबीसी एंड कंपनी हम पर्सनली लिखते थे। नाउ इट्स ए ग्लोबलाइज कि आपको उस हिसाब से नेम अप्रूव करवाना है फॉर्म 117 में। उसके बाद यू हैव टू फिल द फॉर्म 18। सो आईसीआई के पास ही जाएगा, क्योंकि ये जो एमडीपी आई एम टॉकिंग अबाउट रिसेंटली, एमडीपी सीए इन प्रैक्टिस, तो आपके कोरस्पॉन्डिंग इंस्टीट्यूट जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है वो अप्रूव करेंगे। एंड देन जो फॉर्म 18 जो भी अमेंडेड हुआ है वो आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को सेंड करना पड़ेगा। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू दीज आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म। जो नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म क्या लिखती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जैसे एबीसी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बट दीज फर्म्स, जो एमडीपी आपकी फर्म होगी, इट विल राइट एमडीपी सीएज इन प्रैक्टिस, XYZ एमडीपी सीएज इन प्रैक्टिस। उसके लिए आपको न्यू नेम मिलेगा, अगर आपने कन्वर्ट करी है तो भी आपको न्यू नेम मिलेगा। आईसीआई ने अभी इसके ऊपर कुछ नहीं कहा, बट कोस्ट अकाउंटेंट में मेंशन है कि अगर आप कोई एग्जिस्टिंग फर्म कन्वर्ट कर रहे हो एमडीपी में, तो उनकी इस्टेब्लिशमेंट डेट सेम होगी जो आपने जब से आपने पुरानी फर्म स्टार्ट करी। आईसीआई ने अभी क्लैरिफाई नहीं किया, बट उसमें क्लैरिफाइड है। देन एमडीपी सीएस के लिए कैसे इन्फॉर्म करना है, कौन इन्फॉर्म करेगा। सो दिस इज द ड्यूटी जो एमडीपी चार्टर्ड अकाउंटेंट, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को अपनी फर्म में ऐड कर रहा हूँ या कोई और ऐड कर रहा है, तो इट्स देयर ड्यूटी, ये उनकी ड्यूटी है कि वो सर्टिफाई करके दे दे, अटेस्ट करके कि यस आई वांट टू ऐड दिस पर्सन, ही इज द मेंबर ऑफ आईसीएसआई या ही इज द मेंबर ऑफ पोस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट। तो उसके बेसिस पे एंड वन मोर चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको वेरीफाई करेगा, उसको अटेस्ट करेगा। जो मेंबर, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर ऑफ आईसीआई, वो दैट वुड नॉट बी द मेंबर ऑफ दिस एमडीपी, वो उसको अटेस्ट करेगा। इट्स देयर ड्यूटी, वो उसको पूरा चेक करे एंड सेंड इट टू द आईसीआई। एंड देन फॉर्म 18, जो भी फॉर्म 18 रिवाइज हुआ है, फॉर्म 18 उसमें क्या है, दे हैव चेंज द शेड्यूल ए, उसमें दीज आर इन फ्रंट ऑफ यू, उसमें आपके पूरी डिटेल है कि आप किस नेम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेम ऑफ द एमडीपी इन प्रैक्टिस, उसका अगर कोई पैन नंबर या जीएसटी है, क्योंकि 117 आपको पहले लेना पड़ेगा अप्रूवल के बाद, उसको कन्वर्ट करा रहे हैं, आपके पास कोई पैन नंबर जीएसटी है। देन नेम ऑफ द पार्टनर्स विद देयर मेंबरशिप नंबर्स, उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कब से उनके पास प्रैक्टिस है। अगर सीए सीएस सीएम में उसकी डिटेल, एंड इफ अदर इंस्टीट्यूट, अगर सीए सीएस से सीएमए के अलावा एक्चुअरी है, एडवोकेट तो आप बना ही नहीं सकते, और द आर्किटेक्ट है, उनकी डिटेल्स। एंड देन डेट ऑफ द फॉर्मेशन, कि आपने डेट ऑफ द फॉर्मेशन, पार्टनरशिप ऐड करी है, डेट के साथ ऐड कर रहा है, रेफरेंस नंबर, तो अराउंड 6, 17, 18 क्लोज है जो आपको उसके अंदर मेंशन करने हैं। आपका हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, ये सारी डिटेल आपको मेंशन करनी है कि कौन कौन आपका ब्रांच इंचार्ज है, मेंबरशिप नंबर, एंड देन डिक्लेरेशन, और आईसीआई के साथ सबमिट कर देना है। सो दिस इज रिगार्डिंग द प्रोसीजरल पार्ट। और नाउ we will discuss some FAQs, इसमें काफी इंपॉर्टेंट FAQs है। अभी कोई क्वेरीज है तो आई विल टेक इट आउट, मैं आपकी क्वेरीज को ही देख लेता हूँ। इफ वन CS and CS form MDP then it will be no use, because इसमें मिलन जी कोई मेजोरिटी नहीं है, neither percentage, so you have to see। उसके ऊपर मैं अभी कुछ एग्जांपल आपके सामने अभी शेयर करूंगा कि कोई अगर MDP करते हैं सिंगल MBA and MCA is not allowed, धर्मेंद्र जी, MBA and MCA कैन नॉट बी पार्टनर, वो भी अलाउड नहीं है। वाइस ब्रेकिंग चाहिए हो गया, ओके। बाकी क्वेरीज मैं भी लेता हूँ। सो ओनली दीज 6 जो मैंने आपको बताया है, CS कंपनी सेक्रेटरी, मेंबर ऑफ द आईसीएसआई, कोस्ट अकाउंटेंट, देन थर्ड इज एडवोकेट, देन आर्किटेक्ट, एक्चुअरी, इंजीनियर, these 6 member of these institutes only they can form। अभी कुछ FAQs है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम कोस्ट अकाउंटेंट के भी FAQs है वो डिस्कस करेंगे, उससे और क्लैरिटी आपको मिलेगी। नाउ वेदर MBA, अभी किसी ने पूछा भी था कि MBA MCA they can become partner in MDP CA। अगेन आई एम सेइंग MDP CA, क्यों?
MDP CA in practice, because chartered accountant is the first institute who have started it, so that's why I'm talking about only MDP CA कि आप उसमें ऐड कर रहे हो. तो only 6% जो मैंने आपको रूल रेगुलेशन 53B में बताया, only they can become the partner. So MBA वहां पे कहीं मेंशन नहीं है, MCA कहीं मेंशन नहीं है, तो आप MBA MCA के को अपनी उसमें MDP CA में ऐड नहीं कर सकते. अगेन क्लोज 4 एप्लीकेबल होगा कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते और अगेंस्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. LLB का मैं अभी बताता हूं आपको प्रियंका जी. LLB मैंने बताया ना, अभी आपके जो बार काउंसिल ने अलाउ नहीं किया, बार काउंसिल जब अलाउ करेगी तब आप एडवोकेट को अपनी फर्म में पार्टनर बना सकते हो. अभी आप नहीं बना सकते, और अभी ओनली वन साइडेड स्टार्टेड है, रिवर्स साइडेड इज नॉट स्टार्टेड. सेम कोर्सपोंडेंट दे विल चेंज, ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन आएगा, आफ्टर दैट दे विल डू. जैसे अभी ICAI ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस इशू की है, वेरी सून कंपनी सेक्रेटरी विल इशूड, वेरी सून बार काउंसिल भी अमेंड कर सकती है, आपके एक्चुअरीज एंड द इंजीनियरिंग दे विल डू. सो अभी तक जो है लो इट्स वन साइडेड, आप इन सबको ऐड कर सकते हो बट एडवोकेट को नहीं कर सकते, और एक्चुअरी को भी इफ he or she is not holding the COP. Then whether partners of MDPCs in practice can also practice in their individual name, like if I have formed a MDP, मेरे उसमें 5-6 पार्टनर है, 2-3 चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कोस्ट अकाउंटेंट, whether I can also do practice in my own name? Yes, you can do, बट वो RBI में सेम क्लोज एप्लीकेबल होंगे जो नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट में एप्लीकेबल है, कि आप अपनी फर्म भी बना सकते हो, साथ के साथ आप पार्टनरशिप भी अलाउ कर सकते हो. यस टिलारा जी, आप कुछ कह रहे हैं, बताइए. चलो एनीवे, देन नेटवर्किंग, जो ICAI की networking, whether it will allow with the MDP? Yes, it's allowed. MDP can also part of the networking. आप वो networking भी कर सकते हो. You will be the part of networking. Whether MDP CAs in practice will be eligible for empanelment? This is very important question. कि empanelment के लिए applicable है? Yes, आप eligible है. But remember one thing. अभी I told you this is the first step. अभी काफी सारे क्लैरिफिकेशन, काफी सारे अमेंडमेंट आने हैं, बट अभी आपको जो MDP CA में बेनिफिट मिलेगा, अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट एम्पैनलमेंट में अप्लाई किया तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के बेनिफिट मिलेंगे, कंपनी सेक्रेटरी के लिए अप्लाई किया तो कंपनी सेक्रेटरी के उसके लिए अप्लाई मिलेगा आपको. माइट बी न्यू प्रोविजंस विल कम कि जिसकी MDP है, जिसके पास मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनर्स हैं, उनको कुछ एडवांटेज या एडिशनल पॉइंट मिलेंगे CAG में, RBI में, but right now it's not there. Might be very soon it will come. एक मिनट में कुछ क्वेश्चंस हैं. Okay. If we go with MDP, then what effect? तो बैंक ऑडिट के लिए मैंने आपको बता दिया. अभी सेम शिल्पा जी, सेम प्रोविजंस जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने पार्टनर्स हैं, उसी के बेसिस पे आपकी कैटेगरीज चेंज होगी. कंपनी सेक्रेटरी, कोस्ट अकाउंटेंट के अभी तक फिलहाल कोई पॉइंट नहीं. माइट बी MCA or this one law ministry, they will come together. उसमें कुछ आपकी नोटिफिकेशंस आए कि आपके मल्टी डिसिप्लिनरी में आपको कुछ एडवांटेज मिलेगा, बट स्टिल नाउ इट्स नॉट देयर. देन आई टोल्ड यू. प्रशांत जी क्या कर रहे हैं, आप ना करिए प्लीज. Okay, then next is now this is also very important कि whether अगर मैं किसी अपनी फॉर्म में MDP CAs में एक कंपनी सेक्रेटरी या पोस्ट अकाउंटेंट को ऐड कर रहा हूँ, तो whether I need या he need any permission from the company secretaries of India or the cost accountant of India. So they have said no need of any permission. आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, because it's already allowed into the corresponding act regulations. उनके corresponding act regulations में है, so you don't need any permission, आप बन सकते हो. Then next is whether various guidelines issued by the Council of ICAI, means अगर मैंने कोई MDP फॉर्म करी, तो whether Chartered Accountant Act 1949, their rules, regulation, whether it would be applicable on me, तो yes, definitely, but only on the chartered accountants.
जो MDP चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल होंगे और उन्हीं के ऊपर ICAI विल टेक द एक्शन. एंड देन परमिशन हो गया, permission again, whether there are provision cover conversion of existing CS. Yes, I told you कि आप नई MDP बना सकते हो या अपनी जो ओल्ड CA फॉर्म्स है उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो MDP में. बट इन दिस केस आपको अलग से एक FRN नंबर मिलेगा, आपका FRN नंबर चेंज हो जाएगा एंड यू हैव टू राइट MDP CAs in practice. And FRN का I told you, can MDP CA in practice undertake tax audit assignment? टैक्स ऑडिट असाइनमेंट के केसेस में भी यस MDP CAs कैन डू, बट सेम गाइडलाइंस कि अगर इफ यू कैन डू 60 टैक्स ऑडिट देन अकॉर्डिंग टू योर पार्टनर मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. ऐसा नहीं है कि मैंने एक कंपनी सेक्रेटरी को ऐड कर लिया, पोस्ट अकाउंटेंट ऐड कर लिया, दे कैन डू टैक्स ऑडिट 180 टैक्स ऑडिट. नो, लिमिट जो है एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसमें जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में काउंसिल की गाइडलाइंस है इट्स अकॉर्डिंग टू सेम लिमिट्स है आपकी, उसमें कोई एडिशंस नहीं है आपका. देन दीज आर सम गाइडलाइंस जो पोस्ट अकाउंटेंट की गाइडलाइंस है, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले इशू हुई है, जो ICAI ICM में ड्राफ्ट गाइडलाइंस है, तो उनमें कुछ और क्लैरिटी दी है. सो एवरी MDP shall given a new registration number, it will have distinct name, उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली बताया. Experience of an NDP firm shall be counting from the date of constitution of the firm. Here they have clearly mentioned कि अगर कोई नई MDP फॉर्म कर रहे हैं तो जिस डेट को फॉर्म हुई है वहां से उसका एक्सपीरियंस काउंट होगा. एंड इन केस इट्स द एग्जिस्टिंग फर्म इज देयर, देन फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म. तो इसमें क्लियर मेंशन है. देन कैन ए रजिस्टर्ड MDP बी पार्टनर इन अनदर रजिस्टर्ड MDP? कि इफ आई हैव ए MDP, जैसे आपके पार्टनरशिप में है कि आप दूसरे में बन सकते हो, तो नो, दे हैव सेड नो, आप नहीं बन सकते किसी और MDP में, इट्स नॉट अलाउड. देन in case of MDP, if you have a LLP and or the partnership firm, what's the position in case of insolvency and bankruptcy code and the valuations में? So they said कि partners will continue कि इसमें if they are qualified, but MDP or all other partners shall be not liable for his action under the IBC. कि अगर एक कोई partners के IBC है तो बाकी partners are not liable. Same is the for the valuations in the as per valuation जो Companies Act में है. Then who can be in charge? यहाँ पे they have clarified कि अगर आप branches खोलते हैं, ICAI ने तो कहा है कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हैं, but they can be the in charge. But yes, council can allow. But here जो CMA की गाइडलाइंस है या ड्राफ्ट गाइडलाइंस है, they have said any partner of MDP would be permitted to be in charge of the branch office of MDP. They said any partner, but ICAI said might be very soon they will clarify it. MDP would itself decide the branch in charge and take approval of the professional bodies. इस आपको CS है, CA है, CM है, वहां से अप्रूवल उनको बताना पड़ेगा. These are the branch in charge that you have to do. Then how will the experience of MDP, that we have already discussed कि नहीं है तो कब से होगा, if you are converting तो कब से है. Then this is one example is there. If in one MDP, जो मैंने आपको बताया मेजोरिटी कैसे चेक करनी है, मेजोरिटी will be into the all cases, either it's a chartered accountant firm MDP CA or the MDP cost accountant. अभी तो अलाउड नहीं हुआ, बट जब अलाउ होगा उसमें भी, क्योंकि उसमें भी कंपनीज एक्ट में आपको पोस्ट अकाउंटेंट अपॉइंट करने हैं, कंपनीज एक्ट में आपको कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करने हैं. तो यू हैव टू सी द मेजोरिटी, एंड मेजोरिटी इन बोथ द केस इन नंबर of the partners and percentage. So if in case 15 partners are there, 5 CMA, 5 CA, 1 CS, 2 engineer, 1 architect, 1 actuary. So in this case कोई भी मेजोरिटी नहीं है. So MDP रजिस्टर्ड कहाँ होगी? One case is there, आप कहीं भी रजिस्टर करा सकते हो, but whether they can apply for statutory audit or the cost audit or the secretarial audit. So in this case no majority is there because 5 CMA 5 CS है, तो MDPA would not be allowed to do statutory financial audit or the cost audit or the secretarial audit because it doesn't comply the condition. So again I'm saying कि अगर आपको MDP बनानी है, if MDP CA in practice, अभी स्टार्टिंग में तो MDP CA in practice है, then you have the majority of the chartered accountants, then only you will be appointed as the statutory auditor.
जो आपके कंपनीज एक्ट में, तभी आप अपॉइंट हो पाएंगे। नाउ इन अनदर केस, एमडीपी सीए हैज 7 पार्टनर्स। एमडीपी भी फर्म है जो एमडीपी भी सीए, आउट ऑफ दीज 5 आर सीएमए with 20% share and 2 CAs are there 80% shares. In this case, majority as per numbers is of the cost accountant, but as per percentage of share is the chartered accountant. So both the criteria not fulfilled, तो आप ना तो cost audit कर सकते हो और ना ही सेस audit कर सकते हो. So this is something about the MDP. तो अभी if you have any queries, that let me discuss. Lalit ji, yes. We will discuss all the quality at the end. Yeah, Prachi ji, okay. Yes, sir. Yeah, Pradeep जी. एक मिनट अनम्यूट कर लीजिए सर आपने. मैं पहले हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ प्रदीप जी, एक मिनट मैं देख लूं. हाँ ठीक है, हो गया कंप्लीट. यस सर. ओके सर, मुझे पूछना है कि जो शेयरिंग का केसेस होता है, जैसे मैंने कंपनी सेक्रेटरी को रखा अपना पार्टनर, यस सर. और उसको मैं 2% या 5% की शेयरिंग दे रहा हूँ, हाँ तो हाँ. ये तो मुझे ओवरऑल प्रॉफिट में से देनी होगी, चाहे वो मेरा सीए से आ रहा हो या किसी से भी आ रहा हो. यस 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 यस. क्या मैं इसमें रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ किसी अपने को पार्टनरशिप फर्म के अंदर? हाँ हाँ. मैं रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ कि जो कंपनी सेक्रेटरी से रिलेटेड वर्क होगा उसी में उसको परसेंटेज मिलेगी? वो तो पार्टनरशिप एक्ट में है, जो आप वो उसको अलाउ कर सकते हो. वो तो आपके अकॉर्डिंगली है, उसमें ना तो आईसीआई आईसीएसआई किसी का कोई लेना देना नहीं. ओके. हाँ 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 हाँ. क्योंकि हमारी कई पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि हम लोग वर्किंग पार्टनर रख लेते हैं यस यस. और उनका जो शेयर होता है वो बढ़ता चला जाता है. मान लीजिए जो भी हम उनको 5% 10% भी दे रहे हैं और एग्जैक्टली. रिम्यूनरेशन दे रहे हैं, तो वो बढ़ता चला जाता है, और जबकि उनका एक्चुअल में कोई पेबल नहीं होता. वही मैंने आपको बताया ना, अभी हम्म इट्स जस्ट ए बेबी स्टेप. अभी हम्म बहुत सी चीजें आनी है. फॉर एग्जांपल जैसे एम्पेनलमेंट की बात है, एम्पेनलमेंट हम्म में ही अभी तो कंपनी सेक्रेटरी, तो अगर ये कुछ नहीं करेंगे तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा कि हम क्यों बनाए हम्म सीएस को पार्टनर या सीएमए को. कुछ एडिशनल एडवांटेज मिलेगी आपको हम्म एम्पेनलमेंट में या कुछ और, वो न्यू गाइडलाइंस अदर. प्लस देयर शुड बी ए सुपर रेगुलेटर जो सबके ऊपर हम्म रेगुलेट करे. फॉर एग्जांपल नफरा, हम्म कि वो सीए को भी हम्म रेगुलेट करे, सीएस को भी रेगुलेट करे, एंड क्वाइट राइट. ब्रांडिंग करेंगे. कोई ऐसा नहीं है कि मेरा पार्टनर, हो सकता है कि इन केस ऑफ डेथ तो मेजोरिटी कम हो जाए, फिर क्या होगा. तो मैनी क्वेश्चंस आर देयर जिसके ऊपर अभी माइट बी कुछ गाइडलाइंस, न्यू गाइडलाइंस आएंगी. क्योंकि अभी सीए ने अलाउ किया है, फर्स्ट स्टेप इज बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट. पोस्ट अकाउंटेंट की गाइडलाइंस आ गई है. माइट बी आफ्टर सम टाइम सीएस भी अलाउ करे, वो भी अपनी गाइडलाइंस इशू करे. देन accordingly everybody will do. Yes. ओके, थैंक यू. Yes sir. And Lavnish ji, yes, क्या कह रहे हैं आप? Can we become director of a new private limited company being in practice is there? इसका एमडीपी से तो कोई मतलब नहीं है, वो तो अलग से है. लवनीश जी, आप डायरेक्टर बन सकते हो, बट डायरेक्टर के लिए आप सिंप्लिसिटी डायरेक्टर बन सकते हो. सिंप्लिसिटी डायरेक्टर वो वीडियो मेरा आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा. यस लवनीश जी. Sir, basically my question was to start a new company with a startup. In the आजकल startup का काफी trend चल रहा है, तो हाँ हाँ. उसके लिए हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना लवनीश जी, इसका एमडीपी से तो कोई रिलेशन नहीं है. तो उसमें आप डायरेक्टर बन सकते हो, उसमें आईसीआई अलाउड. आप सब्सक्राइबर भी बन सकते हो, एमओ एओए के आप सब्सक्राइबर भी बन सकते हो, आप डायरेक्टर भी बन सकते हो, बट एमडी नहीं बन सकते, होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकते. बट जो डायरेक्टर भी है वो डायरेक्टर सिंप्लिसिटी डायरेक्टर है. डायरेक्टर सिंप्लिसिटी क्या होता है कि आप ना तो कोई वहां से रेमुनेशन वगैरह कुछ लेंगे, प्लस जो उनकी डे टू डे एक्टिविटीज है उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं होंगे, कोई साइनिंग नहीं होगी. दैट इज कॉल्ड डायरेक्टर सिंप्लिसिटी, वो अलाउड. अदरवाइज आपको आईसीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी. All right, sir. Thank you. Yes. Okay. And short queries है. Let me check. Dharmendra ji, behalf of chartered accountant of firm, can a partner having professional degree other than CEO? No, not possible. जो यहाँ पे ब्रांचेस भी ओपन होंगी धर्मेंद्र जी, आइदर इट कैन बी सीए, सीएस, सीएमए, जो एमडीपी सीएस के अंदर पार्टनर्स है, दे कैन ओपन इट. वहां पे अभी जो अभी तक है ब्रांच इंचार्ज वुड बी द चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट
might be because there's a cost accountant they have allowed कि any partner can do, तो उन cases में ICI को भी allowed करना पड़ेगा. Can the authority of signature of the documents be delegated to non-CA member? Not possible. ऐसे कैसे हो सकता है? I told you if somebody is a chartered accountant, अगर कोई CA है, CS है, CM में है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो CA की भी प्रैक्टिस कर रहा है, CS की भी प्रैक्टिस कर रहा है, CMA की भी प्रैक्टिस कर रहा है. No, he can do only one practice. CA कर सकता है, CS कर सकता है. Same thing. कि अगर आप किसी CS को ऐड कर रहे हो या CMA को ऐड कर रहे हो, तो it doesn't mean कि आपने अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर दी कि वो CA के साइन कर लेगा. No. Can we do partnership with non-CA member immediately after the completion of professional qualification? Non-CA member? No. इसमें आपके सिर्फ member of ICA आई है, यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है ACA है या FCA है. अगर वो उन्होंने member means whose name has been registered in the register of ICI. वो कब लिखते हैं? जब आपने GMCs कंप्लीट कर ली, फाइनली एग्जाम्स क्लियर कर लिए, उसमें फॉर्म अप्लाई कर दिया, देन ओनली आप उसको पार्टनर बना सकते हो. आइदर इज 6 month ओल्ड से 1 year, उसमें कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं. ओके. MBA MCA नहीं बना सकते. 81CA LLP फाइल बना दिया. If we go with bank, then what's the bank audit comment? Manjula ji, sir, if CS can take part of tax related work apart from the secretary, हाँ, that we can do definitely. वो तो उसमें कोई इशू नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है मंजुला जी. No issue at all. कि अगर आप CA CS CM में if they can work together, तो कोई ऐसा नहीं है कि taxation related work आपको CA को ही करना है या CS को करना है, CM में करना है. Anybody can do. Only tax audit जो है, audit part, that's only by the chartered accountant. Secretarial part only by the CA. Yes, Biranchi ji, you can ask the question. एक मिनट, एक और क्वेश्चन. Nagendra ji, can a CA accept to work jointly with CS without formal? Without, अभी तो हम MDP के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं नगेंद्र जी, वो उसके ऊपर फिर बाद में होगा. Advocate and CA can make it or not. No, Aishin Bhageshri, आपने लेट ज्वाइन किया. ICAI had allowed in their regulation 53B कि जो बार काउंसिल के मेंबर्स हैं, मेंबर ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, आप उनको भी पार्टनर्स बना सकते हो इनटू द MDP CA इन प्रैक्टिस. बट जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स हैं, दे प्रोहिबिट कि आप किसी और के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते अनलेस द पर्सन इज ए एडवोकेट. सो अभी तक माइट बी आफ्टर सम टाइम दे अलाउड, बट अभी आप एडवोकेट को पार्टनर नहीं बना सकते. रिवर्स तो कभी अलाउड ही नहीं. यस, आई थिंक भाग्यश्री इज क्लियर. संदीप जी, सपोज इन MDP CA in practice there are 2 CAs and 1 CS, whether that's yes बिल्कुल, but you have to see MDP CA 2 chartered accountants there, आपकी majority is there as per numbers, आपको percentage देखना है कितना है, then you will appoint as the statutory auditor. but CS में आपको issue आएगा, secretarial auditor आपके पास firm appoint नहीं हो पाएगी. That's why I'm saying these are the issue which has to resolve. जब आप मिलेंगे, कुछ करेंगे, तभी जाके उसके solution मिलेंगे. This is the only the first step. Can in my HUF I can do HUF का सुखविंदर जी से कोई मतलब नहीं. Can do business share trading work. ये तो ethics के ऊपर है. Thank you मंगू साहब, आप 2 मिनट के लिए आ जाइए, बोल दीजिए कुछ. Thank you sir. आप हैंड रेस कर दीजिए, मैं अनम्यूट कर देता, सबको अनम्यूट कर देता. जस्ट अ मिनट, मैं इसको स्टॉप कर देता. लेट मी. Yes, now you can do unmute yourself. Thank you Mangu sir, thank you very much. Okay sir, my question is that suppose there is ABC network company, there is a ABC network company, now they form into MDC. Will they name it be like that, MDC ABC network and No, you have to form ABC and company, MDP in practice, MDP CA in practice, multidisciplinary. That, like for example, you were writing ABC and company chartered accountants. Now instead of chartered accountant, you have to write this thing, MDP in practice. I understand, MDP CA. but what I'm saying is, per networking rules, if ABC 3 company meet together, they can make a network saying ABC network.
Yes, yes, Now, yes. if they form a MDC, MDC MDP, has to be MDP, prefixed MDP. MDP, Huh. then it will be MDP ABC network MDP CA in practice. or network हट जाएगा. Because it's distinct from the cost accountant, because what they are writing MDP professional in practice. Now what CS will do, what advocate will do, because it's not from the only for the chartered accountant. Other can also form, and we can also become the partner in their firm also. So I that's why I'm saying. My question is that because it is a network, the name is ABC network. As per ICAI permission, they have given it. This is not Now network. you- This is not network. This is partnership. This is not network. That's the separate thing. That's the networking. This is partnership, pure partnership you have did as per Partnership Act 1932 or the LLP. You mean to say network cannot join, only CA firm can Yes, join into MDP? yes, Okay. yes, yes. Exactly. Okay, thank you. Yes, Sharad ji. Vipin ji saying, sir, is there is a partner CA and CS in MNB, whether CA and CS both can work or private limited like CA do? उसमें तो आपका विपिन जी, I told you there should be a majority. तो if one CA is there, one CS is there, कोई majority नहीं आएगी ना, तो आपकी according to number or the percentage. तो you can't do both the things. आप ना तो secretarial audit कर सकते हो, ना आप simple audit, statutory audit कर सकते हो. Sir, can one open more than one? Yes, yes, Lalit ji, very nice. But वो same thing है जैसे आप एक CA में practice कर, एक CA से ज़्यादा firm में आप कर सकते हो. सुनील जी, sir, Maggu साहब, thank you very much. हमारे My बड़े pleasure, Vivek. You have very well researched the subject, and you have been very immaculate in replying to the queries. And there are a lot of queries on this subject. I fully agree. This is right now on the very initial stage, infancy stage. And I seriously doubt whether the Bar Council of India will be permitting advocates to enter into partnership. Exactly. Rest should not be a problem. And you have been doing a lot of good work. My congratulations to you. Keep on doing the good work you have been doing for years altogether, and all the very best to you. Thank you, sir. everyone. I just Thank you. want to share with all of you. Maggu Saab was there. He motivated me. Vivek, you should speak on this MDP. And then I started in last 4 or 5 days. So thank you very much, sir, for Okay. giving me this Thank you. motivation. Thank you very much, sir. Thank you. Yes, Thank sir. you. Thank you. How are you, Pradeep ji? शरद Thank जी, you, कुछ sir. आपका क्वेरी आप पूछ सकते हैं Thank शरद you. जी. sir. Nice Good evening. to see you here. Good evening, sir. And all the very best to everyone. Thank you. Rajiv ji, can CS partner can do his own firm practical along with being partner in MDP? Yes, they can do. If MDPC in practice can't have secretarial audit, then what will the benefit? That's why I'm saying ना संदीप जी, अभी उसके ऊपर काफी सारी clarification will come. Lots of issues are there. Lots of clarifications are there. That will come. Then this is only initial stage. It will take time. Yes, Sharad ji, you are saying something. Yeah, sir. Good evening, sir. मेरा Good सवाल ये था कि अभी ये जो आपने बताया था कि अभी ये पार्टनरशिप के तौर पे निकल के आएगा, जो भी हमारा ये जो CS मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म है. अभी मेरा सवाल इज कनेक्टेड टू, अभी हम कंपनी का ऑडिट ले रहे हैं, तो हमें पार्टनरशिप फर्म के तौर पे अपॉइंटमेंट होंगे हम? Yes, yes. I told you na, as per Yeah. section 141 of the Yes. Companies Act, you have Mhm. they will check majority. If you have Yes, the sir. majority of chartered accountant, then you can Mhm. appoint as the statutory auditor. Majority sir. कैसे check करनी है? Both the cases as per number of partners and also percentage of shares. ओके सर. सर अभी इसमें कंटिन्यूशन मेरा सवाल ये रहा है कि अभी रोटेशन ऑफ ऑडिटर का क्लॉज अभी एप्लीकेबल होता है. समझ लीजिए कि हम ऐसे कंपनी में जहाँ पे रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का क्लॉज एप्लीकेबल होता है. ये रोटेशन का क्लॉज कंपनी सेक्रेटरीज और उनके लिए भी लागू होता है ना सर? Yes, yes, exactly. Same law is there. सर अभी समझ लीजिए मेरा ये 5 साल अभी पार्टनरशिप का है, तो ठीक है 2 साल मिल सकते हैं, मतलब 2 टर्म्स ऑफ 5 years मिल जाएंगे. अभी 10 साल के बाद अभी ये रोटेशन का क्लॉज के हिसाब से अभी समझ लीजिए कि मैं अभी पार्टनरशिप में कुछ चेंज कर रहा हूँ, मेजोरिटी चेंज कर रहा हूँ, जो कि अभी सीए है मेजोरिटी, तो मैं अभी सीएस को मेजोरिटी नंबर्स में कर रहा हूँ, तो उस वक्त क्या वो रोटेशन क्लॉज मेरा सीएस के तौर पे अपॉइंटमेंट होने के लिए कुछ रुकावट आ सकती है?
No, नहीं अभी that's what I told you. This is the initial stage because अभी CA की तो start होगी, cost accountant की guidelines आएंगी, CS will issue the guidelines, then we'll see कि क्या issues आते हैं सारे के सारे. Might Okay, be sir. Thank you after very that new draft guidelines will come. उसमें आपको they will ask for the comments कि क्या issues है, then they will resolve it. Yes, sir. If there are Thank two you, CS, okay. sir. It was very There- informative. Thank you, sir. Okay, Vipin Vaishji, sir, there are two CS and one CS, and if firm is able to do only CS work, then what will the benefit of adding CS in the firm? अभी भी आप CS के साथ आप काम कर रहे हो, see benefit. I am again telling you, अभी ये मत सोचिए benefits क्या है, disadvantage. This is for the long term. आपको एक branding बनानी है. You have to compete not locally. You have to compete globally. तो जो 2 बंदे नहीं कर सकते वो 10 बंदे मिलके कर सकते हैं. तो ये नहीं है कि उसका बेनिफिट, अभी भी तो आप CS से काम करते हो तो आप उनको आप आउटसोर्स कुछ दे रहे हैं या आप उसके साथ शेयर कर रहे हो, तो सेम थिंग यू कैन डू एज ए पार्टनर. आई टोल्ड यू ये इनिशियल स्टेज है, इसके ऊपर काफी क्लैरिफिकेशन आएंगी कि अगर एक मेरे पास CS है तो वो सेक्रेटरी ऑडिट नहीं कर पाएगा. सेम राइट नाउ सेम क्लोज आर देयर, बट लेट्स सी क्या अगर इसके ऊपर आता है. इट्स द फर्स्ट स्टेज. यस, सो एनी अदर क्वेरी? यस राजीव जी. Yes, sir. Sir, thank you for detailed elaboration. It was very nice presentation. One question मेरा है कि if your one CS friend different city में अगर है, क्या है? so can he become partner still? Or he कहाँ should पे? be in the same? He stay in different city. Suppose I am in Delhi and he is हाँ Kolkata. हाँ, कहीं So ऑल ओवर I इंडिया can में make him कहीं भी, partner. ऑल ओवर इंडिया में, इन इंडिया either he is into असम, हिमाचल, जम्मू, Yes. बिहार, कहीं पे भी है, कहीं Yes, पे भी sir. है, आप Yes. उसको पार्टनर बना सकते हो. वहां पे आप ब्रांच ऑफिस ओपन कर Okay. सकते हो. ब्रांच Okay, sir. ऑफिस के लिए अभी तक कंडीशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड बी देयर, अदरवाइज आपको काउंसिल से परमिशन लेनी पड़ेगी. बट CM में दे सेट, उनकी जो ड्राफ्ट Okay. गाइडलाइंस आई है, दे Yeah. सेट एनी पार्टनर कैन बी द ब्रांच इंचार्ज. तो माइट बी वेरी सून ICI विल आल्सो अलाउ कि एनी पार्टनर विल बी द ब्रांच इंचार्ज. आप उसको बना सकते हो पार्टनर. यस राजीव जी. Okay. हेलो यस विपिन जी, आप पूछिए. हाँ सुखमिंदर जी. यस सर. सर गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग जी. इट वाज वेरी इंफॉर्मेशन बहुत बड़े अच्छा लगा सर. ये आपकी एक तो प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया थी. माय प्लेजर सर, माय प्लेजर. सर एक क्वेरी थी नॉट रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट. क्या मैं अपनी HUF में ट्रेडिंग कर सकता हूँ, शेयर ट्रेडिंग बिजनेस कर सकता हूँ? HUF में अलाउड नहीं है सर. नहीं अलाउड. ओके राइट सर, राइट. ठीक है जी, ठीक है. थैंक यू. तो इफ देयर आर नो क्वेरी तो हाँ यस विपिन जी, आप अपनी पूछ सकते क्वेरी. सर मेरा यही पूछना था कि जैसे अभी CS कोलैबोरेट होकर के एक MDP फॉर्म करते हैं एंड मेजॉरिटी अगर CA की है, तो CS क्यों ऐड होना चाहेगा जब वो मैंने उस फॉर्म के आंसर कर बेस तो पे दिया, अपनी मैंने आपको आंसर सेक्रेटरियल तो दे प्रैक्टिस नहीं कर सकता? आपको मैंने आंसर तो दे दिया कि दिस इज लाइक ए ब्रांडिंग. आपको एक compete करना है एक हाई लेवल पे. ऐसे तो अगर हम कहेंगे कि मैं इंडिविजुअल ही काम कर रहा हूं तो मेरे को पार्टनर ऐड करने की क्या जरूरत है. तो आई टोल्ड यू दिस इज द इनिशियल लेवल. वेरी सून इट विल कम कि प्रेफरेंस फॉर द CAG, प्रेफरेंस फॉर द empanelments will be given to who have the multidisciplinary partners. That's the reason कि आपको एक जो एक हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एक ड्रीम है कि ग्लोबल इंडियन फर्म शुड बी देयर. तो वो आपको बनाना है. कोई भी काम करने के लिए पहले दिन से ही आपको एडवांटेज नहीं मिल जाएंगे, कुछ टाइम भी आपको होता है, वो दैट यू हैव टू सीक. सर मैं अभी आगे के एडवांटेज की बात नहीं कर रहा, मैं मैं अभी तो इनिशियल इमीडिएटली बता ही स्टेज की रहा हूँ बात ना. कर रहा हूँ. इमीडिएटली नहीं होता ना, इमीडिएटली एकदम नहीं होता कि आप कुछ करो, आप CA बन गए तो कोई ऐसा थोड़ी है कि अगले दिन ही आपको जॉब मिल जाएगी. इट टेक्स टाइम. आई स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि दिस इज ए इनिशियल लेवल, कि अभी एक स्टेप स्टार्ट हुआ है, अभी काफी कुछ चेंज होना है. लाइक
मग्गू जी ने भी कहा कि लेट्स सी बार काउंसिल अलाउ करती है या नहीं करती, CMA की आपकी ड्राफ्ट गाइडलाइंस आई है, CS की क्या ड्राफ्ट गाइडलाइंस आएंगी, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या करती है, दैट वी हैव टू सी, वेट एंड वॉच। यस विनोद जी, थैंक यू। नमस्कार। गुड इवनिंग खराना जी। गुड इवनिंग सर। सर ये कौन से प्रोफेशनल के साथ हम पार्टनरशिप कर सकते हैं? आपने लेट ज्वाइन किया सर, पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर। 6 प्रोफेशन है जिसमें आपके अभी MDP CA स्टार्ट हुआ है, आप कॉस्ट अकाउंटेंट के साथ कर सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी के साथ कर सकते हो, एडवोकेट के साथ अलाउड नहीं है, इंजीनियर के साथ कर सकते हो, आर्किटेक्ट के साथ कर सकते हो, एक्चुअरी अगर उसके पास COP नहीं है तो कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। हाँ, एडवोकेट के साथ अभी अलाउ नहीं किया, मतलब इंस्टीट्यूट ने अलाउ करा है बट बार काउंसिल ने अलाउ नहीं किया। ठीक है सर, so I think all the query has been solved, so thank you very much everyone for sparing your time. एक और है CA कौशिक जी, thank you कौशिक जी, thank you very much, thanks a lot. So bye bye, take care, be in touch.